Good evening, everyone. A warm welcome to everyone. Overthinking is the biggest cause of our unhappiness. It's a very important topic that Amita ma'am has taken up, and I'm really happy that we took this topic. So, a warm welcome to everyone. My name is Divya. I'm not a RJ, I'm a journalist by profession. And we have just undertaken this beautiful journey where we have a counselor or an expert coming every Tuesday mostly and sometimes on Thursday, and we do sessions on awareness. हमें इतना पता है कि कितने लोगों के मन में सवाल होता है, अगर उसका जवाब मिल जाए तो उनके लिए बहुत लाइफ इजी हो जाती है। तो हम वो कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं। आई एम यूजिंग माय जर्नलिस्टिक स्किल्स टू क्रिएट अवेयरनेस, and I'm so happy to have each one of you, but I will definitely need your help to take this mission forward. अकेले मुझसे नहीं हो पाएगा या अकेले अमिता मैम से नहीं हो पाएगा। हम सबको साथ मिलके करना है। तो please subscribe to Radio Diva's YouTube channel. It's by the same name, the Radio Diva, and you can be part of our happy-go-lucky community through Insta. So Facebook, we have a good, big community there. You can be part of it. And that's it. I think, it's a very important topic that we are talking about today. And no one better than Amita ma'am, because Amita ma'am has done a session with us. I will share the link in the bio. She had done a session on compassionate thinking, how we should be compassionate towards ourselves and others. And it was a beautiful session that she did. So Amita ma'am has dedicated her life to destigmatize mental health. She understands that there is so much of you know stigma attached to mental health, and she really wants to break it. She has been working in this field for so many years, and she has successfully handled clients who have everyday parenting related issues, relationship related issues. She has done many, helped many clients regarding this. And today we are fortunate to have Amita ma'am with us. So a warm welcome, a big warm welcome to you, Amita ma'am. And it is such an honor to have you with us. Thank you, Divya. Thank you for such a introduction, great introduction, I would say. And Divya, I really want to acknowledge you for your mission, for creating awareness, for doing such a work, for taking this society, giving this society that the mental health is very important. एंड दैट्स ट्रू। अगर मेंटल हेल्थ पे काम नहीं करेंगे तो बहुत सारी हमारा हमारा ग्रोथ नहीं है, हमारी सोसाइटी का ग्रोथ नहीं है ना। एज ए कंट्री वी कैन नॉट डेवलप। सो इट इज सो इम्पॉर्टेंट कि हम बेसिक्स पे काम करें, जिसमें मेंटल हेल्थ इज वन ऑफ द बेसिक्स, राइट। मेंटल हेल्थ से ही हमारा फिजिकल हेल्थ भी जुड़ा हुआ है, बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं दोनों। सो यू आर डूइंग वर्क ऑन इट, सो आई रियली रियली एक्नॉलेज यू फॉर दैट, दिव्या। Thank you so much. So much gratitude for this, Amita ma'am. Yes. ग्रेट ग्रेट। So why did you take this topic, Amita ma'am? आपने ये टॉपिक क्यों लिया? क्योंकि मैंने जब ये टॉपिक का डाला, कितने लोगों का मैसेजेस मेरे पास आए कि ये तो मुझे भी प्रॉब्लम है, ये तो मुझे भी प्रॉब्लम है। तो ओवर थिंकिंग इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। आपने ये टॉपिक इसलिए लिया? राइट, क्योंकि ओवर थिंकिंग जो है इट इज द मेजर कॉज ऑफ ऑल द मेंटल इलनेसेस। चाहे हम एंजाइटी की बात करें, हम डिप्रेशन की बात करें, या हम और भी फिजिकल इलनेसेस की भी बात करें, तो ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं रहता ही है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, एनी काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर अगर हम देखें तो शुरुआत कहीं ना कहीं हमारा अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल ना होना है ना। एक्सेसिव थॉट्स बहुत ज्यादा माइंड के अंदर आना, जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं, खासकर निगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स। तो जब हमारा माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो धीरे धीरे हम लोग अपनी हेल्थ के ऊपर से भी अपना लूज करने कंट्रोल लूज कर देते हैं। धीरे धीरे हम डिप्रेशन में पड़ने लगते हैं, धीरे धीरे हम एंजाइटीज के इशू से घिरने लग जाते हैं। सो दिस इज द बेसिक। और ओवर थिंकिंग से हर एक जना डील कर रहा है, दिव्या। एवरी वन इज डीलिंग विद, मतलब किसी को अगर नहीं भी है एक्सेसिव प्रॉब्लम, पर ओवर थिंकिंग तो फिर भी कई लोगों को होती है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, राइट, ओवर थिंकिंग से। और फिर क्या है, नींद नहीं आना बहुत मेजर प्रॉब्लम हो गई है। हमको रातों को नींद नहीं आती है, हमारा फोकस नहीं बैठता, टेंशन नहीं बैठता, पढ़ाई में टेंशन नहीं बैठता। इन सब के पीछे कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग ही है।
सो दैट इज बिकॉज इट इज अ ग्राउंड थिंग, सो आई जस्ट थॉट कि यहाँ पर ही हिट होना बहुत जरूरी है, इसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि वाई इज इट हैपनिंग, ओवर थिंकिंग होती क्यों है सबसे पहले तो। यस दिव्या। ओवर थिंकिंग होती है। आप अगर मुझसे पूछो तो ओवर थिंकिंग तब होती है जब हम हर सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हर चीज हमारे अकॉर्डिंग टू हो, विदाउट थिंकिंग की कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में होती है, हमारे खुद की एक्टिविटी हमारे कंट्रोल में, हमारे खुद का सोच हमारे कंट्रोल में। पर दूसरे लोग कैसा सोचते हैं, दूसरे लोग क्या करते हैं, और बाकी सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे जिंदगी में क्या होता है वो सब हमारे हाथ में नहीं है। तो राइट जो चीज राइट। हमारे हाथ में नहीं है, अगर हम उसके बारे में सोचे तो ओवर थिंकिंग हो जाएगी, नहीं, दैट्स क्योंकि ट्रू, कोई इट इज, रिजल्ट दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ओवर थिंकिंग क्योंकि होती है बहुत ज्यादा, इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। सो हमें ओवर थिंकिंग को क्रैक करना बहुत जरूरी है, ओवर थिंकिंग के ऊपर बात होना बहुत जरूरी है, ओवर थिंकिंग के बारे में समझना बहुत जरूरी है। राइट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली अग्रीड। हम्म। तो हाँ जी, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे थे, बताइए। हाँ, सो मैं अच्छा, मैं ऑडियंस से पूछना चाहती थी, मैं वही भी कर रही थी कि आप लोग इंग्लिश इंग्लिश में सुनना चाहते हो, हिंदी में सुनना चाहते हो, या इंग्लिश में सुनना चाहते हो? बिकॉज मैं चाहती हूँ, लास्ट हमारा सेशन में सब कह रहे थे हिंदी में भी प्लीज बोलिए, हिंदी में भी प्लीज बोलिए। तो मैंने यही रियलाइज किया कि बहुत लोग हिंदी में पसंद करते हैं। तो आप लोग प्लीज बता दीजिएगा, हम दोनों कंफर्टेबल है, हम कुछ में भी बोल सकते हैं, यानी इंग्लिश भी चलेगा, हिंदी भी चलेगा, इंग्लिश भी चलेगा। आई थिंक इंग्लिश विल बी मोर अप्रोप्रिएट ना, एवरीवन विल बी परफेक्ट, कंफर्टेबल विद दैट इंग्लिश। perfect, perfect, Yeah. perfect, Lots of perfect. people, with lots of people English works, with lots of people Hindi works, so we should like. Many people, at least people who understand English, they understand Hindi also. But there are people Right. who understand Hindi and they don't understand English at Hmm. all. तो उनके Right. लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है। लेट्स मेक इट कि जितने लोगों तक पहुंच सके ये हमारी बात। तो अब That's एक बात बताओ, ऑल ऑफ यू प्लीज, अगर आप लोगों को क्वेश्चन हो तो प्लीज आप यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके क्वेश्चन अमिता मैम से पूछ सकूं। सो प्लीज पुट इन योर क्वेश्चन इन द टाइप बॉक्स। एक मुझे क्वेश्चन पूछना था कि देखो, जनरली हम लोग कहते हैं कि लेडीज को कह देते हैं, मोस्टली जेंट्स कह देते हैं कि तुम लोगों की बहुत प्रॉब्लम है, तुम लोग बहुत ज्यादा सोचते हो। तो डू mm-hmm. यू थिंक ओवर थिंकिंग इज एसोसिएटेड विद जेंडर? No, not at all. It happens with everyone. मेंस के साथ भी ये उतना ही है जितना वुमेन्स के साथ है। वुमेन्स को स्टिग्माइज किया जाता है कि वो ओवरली बोलती हैं, वो अपने इमोशंस को शो करती हैं, वो अपना कंसर्न और अपना टेंशन बहुत ज्यादा शो करती हैं, है ना। दैट इज वाई दे आर सेड लाइक दिस, बट अदरवाइज मेंस भी उतना ही ओवर थिंकिंग करते हैं जितना वुमेन करती है। मे बी उनकी एरियाज ऑफ थिंकिंग अलग हो, मे बी वो अलग चीजों पे, अलग टॉपिक्स पे करते हो, बट इट इज देयर फॉर देम। ओके, या पारुल दी इज राइट, women आर मोर एक्सप्रेसिव, एटलीस्ट उनके जो मन में होता है वो उनकी जुबान पे होता है। बहुत मेल सोचते हैं पर वो बोलते नहीं है, जिनकी राइट वजह से उनको और दिक्कत होती है। राइट राइट राइट। Totally agreed. Men try to hide. Absolutely, Monica. So, coming to the main question जो जया जी ने भी डाला, how to stop overthinking. हम सब overthinking को रोकना चाहते हैं। हम इसी मिशन पे आज आपके साथ रात को 9 बजे जुड़े हुए हैं कि हमें आई नो। overthinking रोकना है। राइट राइट राइट। सो ओवर थिंकिंग को रोकने से पहले थोड़ा सा ओवर थिंकिंग के बारे में अंडरस्टैंड करना भी जरूरी होता है ना, राइट, कि कहाँ से इतनी सारी ओवर थिंकिंग आती है, क्यों आती है ना। सो सबसे पहला तो ओवर थिंकिंग का रीजन होता है हमारा अपना बिलीफ सिस्टम, क्योंकि हमारे बहुत सारे बिलीव्स जो हमारी कंडीशनिंग के दौरान हमारे अंदर बन जाते हैं। मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, आई कांट डू दिस, मुझसे नहीं होगा, लोग बहुत खतरनाक हैं, लोग सेल्फिश हैं, है ना। इस तरीके की कुछ बिलीव्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंडीशनिंग के दौरान हम लोगों के बन जाते हैं। एंड फ्रॉम देयर हमारा एक माइंडसेट तैयार हो जाता है। ये माइंडसेट हमारा जो है अपने लिए, दूसरों के लिए, एंड पूरी पूरे लाइक ओवरऑल वर्ल्ड के लिए, इस तरीके के माइंडसेट हमारे हो जाते हैं। और वो माइंडसेट ही हमारे को, जिसको हम कॉग्निटिव एरर्स, थिंकिंग एरर्स कहते हैं, निगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स, है ना, वहां से ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा पैदा हो जाती है हमारे अंदर। जब हम किसी भी सिचुएशन को
ऐसे तरीके से देखते हैं जो एग्जैक्टली अप्रोप्रिएट नहीं है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, है ना। बहुत ज्यादा हमारे अंदर तब ओवर थिंकिंग हो जाती है। जैसे कि कोई सिचुएशन है, मेरी डॉटर ने मेरा फोन नहीं उठाया, तो एकदम से थॉट आ गया मेरे माइंड में कि कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया होगा, है ना। और जैसे ही ये थॉट आया, एकदम से मेरे को घबराहट होना शुरू हो गई और मेरी थिंकिंग, ओवर थिंकिंग बढ़ गई। अगर ऐसा हो गया होगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए। और जब तक वो मेरा फोन या तो नहीं उठाती है या 2 ढाई घंटे तक मुझे कनेक्ट नहीं करती हैं, मेरे को अलग अलग तरीके के थॉट्स आते रहते हैं, मेरे थॉट पैटर्न रुकता ही नहीं है। राइट। सो हमारे जब हमारा थिंकिंग पैटर्न ऐसा चला कि ऐसा कहीं कुछ हो तो नहीं गया होगा फ्यूचर में, और जब ऐसा थॉट आया कि फ्यूचर में कहीं कुछ गड़बड़ हो गई होगी तो, या अभी कुछ गड़बड़ हो गई होगी, कुछ ऐसा हो गया होगा, तो बहुत ज्यादा हमारे अंदर एंजाइटी और ओवर थिंकिंग अपने आप स्टार्ट हो जाती है। राइट। तो हमें इसमें थॉट्स को पकड़ना बहुत जरूरी होता है। ओवर थिंकिंग में हमारे ऑटोमेटिक थॉट्स आते हैं। ओवर थिंकिंग में ऐसे थॉट नहीं आते हैं जिनको आप देखो, कुछ एक थॉट होते हैं, दीज आर क्रिएटिव थॉट्स, है ना। हमें अपनी लाइफ में कुछ क्रिएशन करना है, कुछ प्लान बनाना है, फ्यूचर बनाना है, तो हम उनके लिए सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं। आप रेडियो डीवा में काम कर रहे हो, आप सेशंस करते हो, तो आप उसके लिए कुछ सोचते हो, प्लान करते हो। दीज आर ऑल क्रिएटिव थॉट्स। हमें कुछ काम करना है, उसके लिए हम क्रिएटिव थॉट लेके आ रहे हैं। पर ओवर थिंकिंग के पैटर्न में जो थॉट्स आते हैं, दीज आर ऑल ऑटोमेटिक, अपने आप माइंड में पॉपअप होते हैं, आपका उनके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। राइट। जब मेरे माइंड में ये थॉट आया कि मेरी डॉटर को कुछ हो तो नहीं गया होगा, दीज आर ऑल ऑटोमेटिक, मैंने तो नहीं चाहा कि ये थॉट मेरे माइंड में आए। राइट। मेरी फ्रेंड ने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया, अपने आप माइंड में थॉट आ गया कि वो मुझे इग्नोर कर रही है। राइट। मैंने तो नहीं माइंड में ऐसा सोचा या जानबूझ के तो नहीं सोचा, अपने आप ही तो पॉपअप हो गया। हम्म। सो ये थॉट्स जो अपने आप माइंड में पॉपअप हो जाते हैं, दीज आर कॉल्ड ऑटोमेटिक थॉट्स। और ये ऑटोमेटिक थॉट्स हमारे बिलीफ सिस्टम से जुड़े होते हैं, हमारे अपने थिंकिंग एरर पैटर्न से जुड़े हुए होते हैं। राइट। तो जैसे जैसे हम अपने बिलीफ सिस्टम को समझना शुरू करते हैं और हम ये समझना शुरू करते हैं कि हमारा कुछ देखने का तरीका ऐसा है विच इज नॉट करेक्ट, विच इज दीज आर कॉग्निटिव एरर्स, तो हम अपनी ओवर थिंकिंग को, थोड़ा सा पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं। आर यू गेटिंग मी, दिव्या? हम्म। 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 ठीक है। जैसे मैं तुम्हें एक बात मैं बताऊं, जैसे मेरा अगर मान लो ये बिलीफ सिस्टम है कि आई एम अनलवेबल। ठीक है। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, उसने मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया, या उसने बोला कि अभी मैं बिजी हूँ, रख दो। ठीक है। सो एकदम से ऑटोमेटिकली मेरे माइंड के अंदर थॉट आया कि ये मुझसे ऐसे बात कर रहा है, ये मुझसे प्यार नहीं करता है ना। अपने आप माइंड में थॉट आया कि ऐसे उसने ऐसे क्यों बोल दिया मुझे, ऐसे मेरी इसको मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, इसको मेरी इज्जत नहीं है। ठीक है। अपने आप माइंड में थॉट आने शुरू हो गए इसी तरीके के। इनको मैंने जबरदस्ती नहीं लाया, मैंने सोच के नहीं लाया, दे स्टार्टेड पॉपिंग ऑटोमेटिकली इन माई माइंड, क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम आई एम अनलवेबल ट्रिगर हो गया उसी समय। और जैसे ही वो ट्रिगर हुआ, मेरे माइंड में इस तरीके के थॉट्स आने शुरू हो गए। हम्म। सो जब इस तरीके के थॉट्स आते हैं, तो यहाँ पर हमें अपने थॉट्स को समझना, थॉट्स को पकड़ना और थॉट्स को लिखना बहुत हेल्प करता है। अगर हम थॉट्स को लिखना स्टार्ट करेंगे, तो क्या होगा, हमें समझ में आएगा कि ओके, मेरे माइंड में ये थॉट आते हैं, इस तरीके का थॉट मेरे माइंड में आया, तो इसमें क्या कॉग्निशन एरर है। बहुत तरीके की कॉग्निशन एरर होती है ना। जब थॉट्स में हम क्या सोचते हैं कि अगर ऐसा हो गया, मतलब अगर मेरे फ्रेंड, अभी मेरे हस्बैंड ने मेरा फोन नहीं उठाया, तो ये हमेशा ही ऐसे करता है। उसने एक बार या दो बार मेरा फोन नहीं उठाया होगा, या एक या दो बार मेरी बात का जवाब नहीं दिया होगा, मान लिया। पर मैंने क्या सोचा, हमेशा ही मेरे साथ ऐसा करता है। मैंने ओवर जनरलाइजेशन कर दिया। जैसे ही मैंने ओवर जनरलाइजेशन कर दिया, तो क्या हुआ, मेरे अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा, एंजाइटी अपने आप आनी शुरू हो गई, अपने लिए बुरा लगना शुरू हो गया, अपने बारे में बुरा बुरा फील होना शुरू हो गया। फिर ये ओवर थिंकिंग का पैटर्न चलना शुरू हो गया, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद चौथा। ये भी होता है, फिर तो मेरे साथ ये भी होता है, इस टाइम पे उसने ये किया था, इस टाइम पे उसने ये किया था, और इसी तरीके से ओवर थिंकिंग का पैटर्न चलना शुरू हो जाता है माइंड के अंदर। आर यू गेटिंग इट?
तो ये कॉग्निशंस एरर को समझना, इनको पकड़ना, इन कॉग्निशंस एरर में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि इसमें हम चीजों को पर्सनली बहुत लेते हैं। जैसे ही मेरे हस्बैंड ने बोला फोन रख दे, अभी मेरे को बात नहीं करनी है, मैं बहुत बिजी हूं कहीं पर, आई एम इन द मीटिंग, आई एम बिजी, मुझे क्या फील हुआ, ये मुझे प्यार नहीं करता, दिस इज समथिंग अबाउट मी। जब मुझे लगा कि मेरी बात है, मेरे ईगो को कुछ हर्ट हो गया, सो वहां पर बहुत ज्यादा बुरा लगना शुरू हो गया, और वो ओवर थिंकिंग का पैटर्न बनना शुरू हो गया। सो पर्सनलाइजेशन होता है इन थॉट्स के अंदर बहुत ज्यादा। ओके, शुड और मस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जहां पर हमारा कॉग्निशन एरर होते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, मेरे साथ इस तरीके की बात तो करनी ही नहीं चाहिए, है ना। जब हम शुड और मस्ट लगाते हैं, हमारा बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, जैसे तुमने बोला, हम सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ओवर थिंकिंग एक्चुअली बहुत ज्यादा होती है बिकॉज वी वांट की सिचुएशन मेरे हिसाब से चलनी चाहिए, मेरे हस्बैंड को मुझे प्यार करना ही चाहिए, मुझसे ऐसे बात करनी ही नहीं चाहिए, हाउ डेयर ही कि उसने मुझे कह दिया कि तू फोन रख दे, है ना। सो आई वॉन्ट टू कंट्रोल द सिचुएशन राइट नाउ। और जितना हम सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतना उतना हमारा ओवर थिंकिंग बढ़ता चला जाता है, क्योंकि सिचुएशंस एज यू सेड हमारे हाथ में तो नहीं है बहुत ज्यादा, है ना। थिंग्स कैन हैपन एंड थिंग्स कैन नॉट हैपन, प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं उनकी, राइट। सो वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल ऑन दैट। पर हम क्या करते हैं कि नहीं, जो मैं चाहती हूँ चीजें उसी हिसाब से होनी चाहिए, दैट इज वाई ओवर थिंकिंग पैटर्न्स आर देयर। सो सबसे पहले इस बेसिक को अगर हम समझ जाएंगे ना, कि फ्रॉम वेयर दिस ओवर थिंकिंग इज कमिंग, एंड थॉट्स हैं, दीज आर ऑटोमेटिक थॉट्स, इन ऑटोमेटिक थॉट्स को जितना पकड़ोगे, इनको जितना एनालाइज करोगे, इनके ऊपर जितना काम करोगे, दैट विल हेल्प यू टू ब्रेक दीज पैटर्न्स, उतना आप इस ओवर थिंकिंग के पैटर्न को ब्रेक कर पाओगे, राइट। सो जैसे अगर मैं अगर एग्जांपल दूं, तो हम्म समझ लो मेरी फ्रेंड ने मेरा फोन नहीं उठाया, या मेरी डॉटर ने मेरा फोन नहीं उठाया, तो हम्म इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू अ स्पाइरल ऑफ थॉट्स की कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया, कहीं वो मुझे इग्नोर नहीं कर रही है, कहीं वो हम्म मुझसे दूर मेरे से अब प्यार कम करने लगी है, वैसे वाले थॉट्स को अगर हम बढ़ावा देंगे तो इट विल गो लाइक अ स्पाइरल, वो बढ़ता राइट रहेगा, राइट विल बी विशियस सर्कल। रादर हम्म देन दैट वी स्टॉप इट, कि अभी अभी नए कॉलेज में गई है, हम्म शी नीड्स हर टाइम, शी इज मेकिंग हर फ्रेंड्स, लेट मी राइट गिव हर स्पेस, मेरी है कहाँ जाएगी, स्टॉप। हम्म राइट I राइट get busy doing something else rather than हम्म sitting and waiting for and looking at the phone कि कब फोन बजेगा, कब फोन बजेगा। राइट राइट राइट। ऐसा सो होता है क्या कि ओवर थिंकिंग बहुत हमारे खाली रहने की वजह से भी ओवर थिंकिंग होती है? नहीं, इट्स नथिंग अबाउट खाली रहने की वजह से होती है, इट्स बिकॉज योर वी आर नॉट माइंड। बिजी, वी आर नॉट। आपका माइंड से ऑटोमेटिक डायलॉग, ऑटोमेटिक थॉट्स अपने आप कितने भी बिजी हो लो, लेकिन अगर आपके अंदर बहुत सारा एरर पैटर्न है अगर बहुत सारे एरर्स हैं थिंकिंग के आपके अंदर, बहुत ज्यादा बिलीफ सिस्टम आपका निगेटिव है, तो वो ओवर थिंकिंग होएगी होएगी, आप बिजी होगे तब भी वो होती रहेगी यानी आपको, है ना। दिमाग में चलता रहेगा बिजी भी रहे तो। हाँ, आपके दिमाग में तो चलता रहेगा ना, और वो कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट करेगा। वो क्या करेगा, आपकी एनर्जी को कम करेगा, आप भले ही बिजी होगे पर आपका एनर्जी लेवल्स जरूर डाउन जाएंगे, वहां पर आपका फोकस, आपका अटेंशन वहां पर लूज होगा ही होगा। ओवर थिंकिंग पैटर्न से आपका स्लीपिंग डिस्टर्ब होता ही होता है, राइट। ये कुछ चीजें हैं विच आर लाइक, वो होती हैं आपके रिलेशनशिप्स में, कहीं ना कहीं फर्क आता है, क्योंकि चिड़चिड़ाहट, ओवर थिंकिंग से क्या है ना, यू आर नॉट हैप्पी, थोड़ा बॉडी के अंदर इरिटेशन, टेंशन भी बना रहता है। सो उन सारी चीजों का इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप्स के भी ऊपर आता है। सो इट्स जस्ट कि इट हैज ह्यूज इम्पैक्ट। सो ओके। सो सो देयर इज अ क्वेश्चन, हाँ बताइए, बताइए। ग्रुप में किसी ने क्वेश्चन डाला है, अमिता ने क्वेश्चन डाला है कि डज ओवर थिंकिंग इज सीन ऑन द फेस और डज बिहेवियर शोज दैट अ पर्सन इज ओवर थिंकिंग? यस, इट शोज ऑन द फेस इफ यू आर ओवर डेफिनेटली। थिंकिंग। मैंने बहुत लोगों के चेहरे पे देखा है कि हाँ दे आर ओवर थिंकिंग, पता चल रहा है कि हाँ दे आर टू मच थिंकिंग। तो राइट राइट। आप आंसर बेटर दोगे अमिता नहीं मैम। नहीं, बिल्कुल राइट, फेस पे पता चलता है।
क्योंकि आपका 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 अपने आप आपका एनर्जी लेवल जब लूज होता है, व्हेन यू आर यहाँ वहां आप जा रहे हो, तो अदर पर्सन कैन रियली सेंस कि क्या चल रहा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज में शो होता है, आपकी बातचीत में, आपकी एनर्जीज में शो होता है. सो एवरीवेयर यू कैन आइडेंटिफाई कि दिस पर्सन इज ओवर थिंकिंग अबाउट एनीथिंग, राइट. तो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी पोस्चर, जेस्चर, आपका फेशियल, एवरीथिंग विल चेंज अकॉर्डिंग टू इट, राइट. सो अभी यहाँ जाएंगे तो थोड़ा बातचीत का फ्लो टूट जाता है. सो यू जस्ट टेक केयर ऑफ इट. ओके. तो दिस इज व्हाट इट इज कि And हमें अपने कॉग्निशन एरर्स को पकड़ना है, हमें अपने ऑटोमेटिक थॉट्स को सबसे पहले पकड़ना है. जितना जितना ऑटोमेटिक थॉट्स को पकड़ेंगे, उससे हम अपने कॉग्निशन एरर्स को, थिंकिंग एरर के पैटर्न्स को पकड़ना शुरू करेंगे. जैसे ही हम उन पैटर्न्स को पकड़ेंगे तो हम उन पैटर्न्स को ब्रेक कर सकते हैं यहाँ पर, राइट. कोई क्वेश्चन है अभी सो फार? नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं. हाँ, क्वेश्चन है, शुभ्रा जी का है, does it comes from childhood issues also? राइट, राइट, Maybe राइट. from want of attention, maybe neglect in the growing up years, low self esteem, कि कहीं ना कहीं insecurity. हाँ, राइट, राइट, राइट. एज वी आर टॉकिंग अबाउट बिलीफ सिस्टम ना, तो हमारा बिलीफ सिस्टम हमारे चाइल्डहुड की कंडीशनिंग के दौरान ही, चाइल्डहुड में हमें जिस तरीका का एनवायरनमेंट मिला होता है, जिस तरीके का आसपास हमको बातचीत, पेरेंट्स के द्वारा जो कम्युनिकेशन हमारे को किया जाता है, नॉट ओनली पेरेंट्स, पेरेंट्स के अलावा भी स्कूल्स में टीचर्स हैं, और आप कहीं बाहर खेलने जाते हो या रिलेटिव्स वगैरह हैं, कहीं से भी कुछ ऐसे कम्युनिकेशन मिलते हैं या ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है, वो आपके बिलीफ सिस्टम को ऐसा नेगेटिवली डेवलप कर देता है कि वहां से आपके अंदर इस तरीके की थिंकिंग पैटर्न्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं. वहां से अगर आप उनको ब्रेक करने के लिए सोच रहे हो, सो नाउ द फर्स्ट थिंग इज स्टार्ट नोटिसिंग योर ऑटोमेटिक डायलॉग्स. अपने ऑटोमेटिक थिंकिंग को नोटिस करना शुरू करो कि मेरे माइंड में किस तरीके का थॉट आया. जितना जितना हम कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ अपने थॉट्स को लिखेंगे और फिर हम उनको डिस्प्यूट करेंगे, मतलब हम उनको देखेंगे कि इज दिस थॉट रियली हेल्पिंग मी. बहुत सारे तरीके होते हैं उन थॉट्स को डिस्प्यूट करने के. द फर्स्ट थिंग इज जस्ट आस्क योर, देयर इज अ राइट काइंड ऑफ अ क्वेश्चंस यू आर सपोज टू आस्क. Those right kind of a questions will dispute those thoughts, and it will give you a clarity about the situation, and as well as it will bring down your negative feeling भी आपका नीचे जाएगा उससे. सो मे बी जैसे मेरे माइंड में थॉट आया कि मेरे हस्बैंड जो है हमेशा ही मेरा फोन नहीं उठाते हैं, एंड दिस थॉट हैज क्रिएटेड नेगेटिव थिंकिंग स्पाइरल इनसाइड मी. So if I will just catch this thought, कि this thought has come inside me and these thoughts are creating सच अ ओवर थिंकिंग पैटर्न, और मेरे अंदर नेगेटिव फीलिंग्स जनरेट हो रही है, सो आई कैन आस्क माई सेल्फ, आस्किंग राइट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, इज दिस थॉट रियली ट्रूथ? क्या ये वाकई सच है कि वो कभी भी मेरा फोन नहीं उठाता है? कितना परसेंट है कि उसने मेरा फोन नहीं उठाया और कितना परसेंट है उसने उठाया है? एंड वेन आई विल रियली सी द सिचुएशंस, तो केस इज नॉट लाइक दैट. मे बी उसने 2-3 बार नहीं उठाया, पर बहुत सारी बार वो उठाता भी है जिसको मैंने इग्नोर कर दिया. क्यों इग्नोर कर दिया? बिकॉज आई हैव सम काइंड ऑफ अ बिलीफ सिस्टम अबाउट माई सेल्फ. तो ऐसे में जस्ट थिंकिंग अबाउट इट कि ऐसा नहीं है कि वो कभी मेरा फोन नहीं उठाता है, वो बहुत बार उठाता भी है. जैसे ही मैं अपने थॉट्स को देखती हूँ कि इट्स नॉट अ रियलिटी, इट्स जस्ट अ थॉट विच हैज पॉप्ड अप इन माई माइंड एंड इट इज क्रिएटिंग दिस नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न, सो आई कैन ब्रेक दिस पैटर्न. So always, if you are getting any thoughts which is negative in your mind, ask yourself, is this thought real or just a thought? अगर ये सिर्फ थॉट है तो थॉट इज नॉट अ रियलिटी. प्लीज एवरीवन अंडरस्टैंड इट कि थॉट इज नॉट अ रियलिटी. जैसे ही आप ये अपने आप को बताओगे, वैसे ही आपका ओवर थिंकिंग का पैटर्न ब्रेक होता है यहाँ पर. ओके. एंड द सेकेंड kind of a question, which is also a very important question to ask ourselves, is this thought anyways help me? क्या ये थॉट वाकई मुझे मदद कर रहा है किसी भी तरीके से? इफ आई एम थिंकिंग लाइक दिस कि मेरी फ्रेंड मुझे इग्नोर कर रही है, और अगर ये थॉट मेरे माइंड को डिस्टर्ब कर रहा है और मुझे ओवर थिंकिंग के स्पाइरल पे लेके जा रहा है, तो इज दिस थॉट एक्चुअली हेल्पिंग मी एनी हाउ?
क्योंकि यहाँ मुझे ये किसी तरीके की हेल्प तो कर नहीं रहा है. ओनली माई एनर्जी लेवल्स आर गोइंग डाउन, ओनली आई एम फीलिंग माई सेल्फ, आई एम जस्ट, मैं अपने आप को एक निगेटिव थिंकिंग के स्पाइरल में मैं डाल रही हूँ यहाँ पर. एंड दिस थॉट इज नॉट हेल्पिंग मी एट ऑल. So asking this kind of a question, is this really help me? It will definitely reduce your level. Ki, no, it is not helping me. So let's just remove it. Okay. And the right kind of a question is when we actually personally attach ourself from the thought. So asking ourselves कि why am I thinking कि ऐसा हो जाएगा, इससे मैं अपने आप को इतना अटैच क्यों कर रही हूँ. देखो क्या होता है, कई बार लोग अपने लिए कि लोग मेरे बारे में बुरा ना सोचें, इस बात को लेके बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं कि इसने मेरे बारे में ऐसा सोच लिया तो, राइट. और ये थॉट जो ओवर थिंकिंग करके ये आता है हमारे अंदर, जस्ट आस्किंग अवर सेल्फ कि अगर उसने मेरे बारे में सोच भी लिया तो इतनी क्या बड़ी बात हो जाएगी. मैं भी दिन में 100 लोगों के बारे में कुछ कुछ गलत सोचती हूँ, तो ऐसे में उनका क्या बिगड़ जाता है. इफ जस्ट आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन कि ठीक है, अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ भी गलत सोच लिया, इट्स ओके, वो उसका परसेप्शन है, उसका देखने का तरीका है. इसका मतलब नहीं है कि मैं सेल्फिश हूं या मैं बेकार हूं, राइट. क्योंकि हम लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं इसको लेकर के हमारा ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा चलता है. मैंने उससे बात नहीं करी, वो मेरे बारे में गलत सोच रही होगी. मैंने इस तरीके से किया, वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रही होगी. एंड ऑल द टाइम वी आर वरीड अबाउट एंड गेटिंग इनटू ओवर थिंकिंग बिकॉज ऑफ दिस थॉट, राइट. सो ब्रेक दिस पैटर्न, इट्स ओके. वो उसका देखने का तरीका है, उसका परसेप्शन है. वाई आर यू गेटिंग सो मच इन्वॉल्व इन इट, राइट. सो हम भी, और एंड इन व्हेन वी विल टेल कि मैंने भी उसके बारे में कई बार बुरा सोचा ही है, कई बार मैंने उसको भी जज किया है, देन इट्स ओके. वी ऑल एज ए ह्यूमन बीइंग डू दैट, राइट. सो एवरीवन कैन डू दैट. So just telling ourselves these right kind of a question really help us to break these negative thinking patterns. Okay. Okay. Anything else right now, Divya? इसके अलावा कुछ अभी और क्वेश्चन है, नहीं तो हम थोड़ा और आगे इसको एक्सप्लेन कर. There is a question. Is overthinking correlated to depression as well? यस, डेफिनेटली. डिप्रेशन में ओवर थिंकिंग जब बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा हम लोग निगेटिवली चीजों को असेस करते हैं, गिल्ट की फीलिंग बहुत ज्यादा होती है, शेम की फीलिंग बहुत ज्यादा जब होती है, तो इट लीड्स टू डिप्रेशन. स्लोली ग्रेजुअली इट लीड्स टू डिप्रेशन, राइट. व्हेन वी डोंट ट्रस्ट अवर सेल्फ, व्हेन वी डोंट ट्रस्ट अदर्स, और बहुत ज्यादा निगेटिवली खुद को असेस कर रहे हैं, लाइफ की सिचुएशंस को असेस कर रहे हैं हम ऑल द टाइम, वी आर लाइक थिंकिंग, गिल्ट की फीलिंग में है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा गलत कर दिया. एंड दीज ऑल थिंग जो है धीरे धीरे हमको डिप्रेशन की तरफ लेके जाती हैं, एंजाइटी की तरफ भी लेके जाती हैं हमारे को. अगर कभी हमारे को कोई चीजें एक्सप्रेस करने को नहीं मिली हैं, या बहुत ज्यादा हम लोग जैसे फ्यूचर से रिलेटेड थॉट्स हैं, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, तो ऐसे में भी हम लोग का ओवर थिंकिंग का पैटर्न बनता है. ओवर थिंकिंग हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वी आर नॉट इन अ प्रेजेंट मोमेंट. ओवर थिंकिंग के समय या तो हम पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं, या फिर हम लोग फ्यूचर के डर से भरे होते हैं कि फ्यूचर में ये हो जाएगा, फ्यूचर में वो हो जाएगा, और इस वजह से हमारे अंदर बहुत ज्यादा प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते हैं हम लोग. सो अगर ओवर थिंकिंग से डील करना है तो माइंडफुलनेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. वहां पर हम लोग अगर इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, टू बी इन द मोमेंट, टू वी जस्ट ट्रेन आवर माइंड टू बी इन द मोमेंट. माइंडफुलनेस रिलैक्सेशन टेक्निक्स आती हैं, दे रियली हेल्प्स अ लॉट, राइट. एंड बीइंग इन द मोमेंट खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं. इफ यू आर ईटिंग योर फूड, जस्ट बी इन द मोमेंट एंड माइंडफुली ईट योर फूड. इफ यू आर गोइंग फॉर अ वॉक, बी इन द मोमेंट, माइंडफुली वॉक. सो इस तरीके से जैसे आप माइंडफुली जैसे जैसे करते हो, योर बॉडी गेट्स ट्रेन्ड फॉर इट. धीरे धीरे आपको ट्रेनिंग हो जाती है माइंड को कि आप यहाँ वहां इतना मत सोचो, बी इन द मोमेंट. और जैसे जैसे वो ट्रेनिंग होती है तो हमारा ओवर थिंकिंग का पैटर्न भी यहाँ पर ब्रेक होता है, राइट. हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज यहाँ पर बहुत हेल्प करती है दिव्या. हम लोग अगर
अनुलोम विलोम है, और दूसरे विम हॉफ करके एक है, उनके ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, दीज आर वेरी गुड। अगर हम इनको करते हैं तो वो भी एकदम से हमारे आप को। आपके ना आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो गई थी, आप वापस से ये बताना आप जो बता रहे थे। सेकंड आई थिंक आप अगर हो सके तो मैसेज पे भी डाल देना हाँ हाँ ताकि हाँ। सब फॉलो करें। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं डाल दूंगी। विम हॉफ है, वो विम हॉफ का ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, दीज आर वेरी गुड ब्रीदिंग टेक्निक्स। वो एकदम से ही, मतलब व्हेन यू डू दोस ब्रीदिंग टेक्निक्स, या विम हॉफ यहाँ आपने लिख दिया, ओके। सो ये इनकी ब्रीदिंग टेक्निक जो है, यूट्यूब में इनके बहुत वीडियोस मिलेंगे आपको, एंड यू कैन ऑल प्रैक्टिस इट। इससे भी आपका निगेटिव थिंकिंग का पैटर्न ब्रेक होता है, क्योंकि माइंड कुछ टाइम के लिए शांत हो जाता है। हमें माइंड को बहुत ज्यादा जो थिंकिंग आ रही है उसको शांत करना है हमें। जितना जितना वो शांत होता जाएगा, उतना उतना हमारे अंदर फिर हमारा पैटर्न वहां पे ब्रेक होंगे ओवर थिंकिंग के। राइट, एंड टेलिंग अवर सेल्फ अगेन एंड अगेन कि क्या हमारे हाथ में और क्या हमारे हाथ में नहीं है। सो एक्सेप्ट व्हाट इज नॉट इन योर हैंड एंड टू वर्क ऑन जो आपके हाथ में है। और हम सबको पता है कि हाथ में हमारा अपना ही है। हम क्या सोचते हैं, हम क्या फील कर सकते हैं, वो थोड़ा बहुत हमारे कंट्रोल में, अदरवाइज बाहर आउटसाइड कंडीशंस बहुत ज्यादा हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो व्हेन वी विल सी कि ये होना ही चाहिए, करना ही चाहिए, तो वो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग का पैटर्न हमारे अंदर लेके आता है। when we just be, let it be, and like being flexible with the situations and let it go की तरफ हम जाते हैं, फॉरगिवनेस की तरफ जितना जितना जाते हैं, उतना उतना हमारा निगेटिव थिंकिंग का, ओवर थिंकिंग का पैटर्न ब्रेक होता है यहाँ पर। राइट। ब्यूटीफुल। आपने इतनी सहजता से और इतने अच्छे से हमें समझाया। और विम हॉफ, थैंक यू जया जी। मैं भी इनको गूगल करूंगी। आई हैव नो क्लू अबाउट विम हॉफ, बट थैंक यू सो मच, ये आपने कुछ नई चीज हमें बताई। बहुत अच्छा आपने समझाया कि ना कैसे पैटर्न को पकड़ना, सोचना, और जो चीज हाथ में है उसके बारे में सोचो, जो चीज नहीं है उसके बारे में सोच के फ्यूचर के बारे में बहुत लोग बहुत एंशियस होते हैं कि क्या होगा, या तो पास्ट को पकड़ के बैठते हैं या फ्यूचर में। तो ये बहुत ही बड़ी इश्यू है हम सबके साथ। बट द बेसिक थिंग इज दिव्या कि हाथ में नहीं, दीज आर ऑल ऑटोमेटिक थॉट्स। जो भी परेशान है उनके, ऐसा नहीं है कि हमारे कह देने से कि मत सोचो वो नहीं सोचेंगे, है ना, हाथ में नहीं है। सो इसके लिए हमें माइंड एंड बॉडी की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ट्रेनिंग करनी होगी। और माइंड एंड बॉडी की ट्रेनिंग के लिए माइंडफुलनेस की ट्रेनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, अपने कॉग्निशन एरर्स को पकड़ो, उनको सही करो। जैसे जैसे अपने ऊपर काम करोगे, डेफिनेटली आपका ओवर थिंकिंग का पैटर्न ब्रेक हो। राइट। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज मुझे भी लगता है कि मैं बहुत ओवर थिंकिंग करती थी, मैं बहुत फ्यूचर को लेके एंशियस रहती थी। बट बाय प्रैक्टिस इट एक्चुअली स्टॉप्स, कि आप अपने थॉट को कंट्रोल करते करते फिर वो एक हैबिट में हो जाता है। राइट राइट जैसे राइट। जैसे मुझे कभी भी कोई चीज की चिंता होती है तो आई एम लाइक, नो, आई चूज हैप्पीनेस ओवर एवरीथिंग, कि ये दिस इज स्टीलिंग माय हैप्पीनेस, लेट मी नॉट थिंक टू मच अबाउट इट। तो वो एक अपने अपने आप को रोकना, और प्रैक्टिस से हो जाएगा कोई भी चीज। आई राइट। थिंक प्रैक्टिस से हो सकता है। I think breaking the pattern, deliberately breaking the pattern will definitely work, Jayaji. डेफिनेटली। हम्म। Yeah. Anyone else has any question? I think अमिता मैम ने बहुत क्लियरली समझा दिया। बहुत क्लियरली अमिता मैम ने हमें ये समझा दिया है। सो मैंने म्यूट कर दिया। आप एक बार अपने माइक को ध्यान दीजिए। ओके, सो बहुत क्लियरली अमिता मैम ने हमें समझा दिया कि ओवर थिंकिंग डजंट हेल्प। एंड एक्चुअली ना, पता है, हमारा ना यही होता है कि ना हम दूसरे क्या सोच रहे हैं वो भी हम भी यही सोच लेते हैं। हम अपना सोच तो सोचते हैं, दूसरों का भी सोचते हैं कि आई एम श्योर ये सोच रहा होगा मेरे बारे में ऐसा। जो जो सोच रहा है सोचने दो, वो उसकी प्रॉब्लम है। दुनिया की प्रॉब्लम हम अपने सर पे रख के क्या कर लेंगे, है ना? I think we take ourselves way too seriously. Walking is also quite helpful. Recently realized. You want to राइट। you want to फिजिकल एक्टिविटीज डेफिनेटली हेल्प्स अस, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज हमारे अंदर ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज करती है विच रियली हेल्प्स अस। मेडिटेशन आल्सो हेल्प अस। मेडिटेशन अगर हम करते हैं उससे भी हमारा ओवर थिंकिंग का पैटर्न थोड़ा सा ब्रेक होता है, क्योंकि हम लोग हमारी माइंड को
शांत रहने की, पीसफुल रहने की हम लोग ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। अगेन अगेन थॉट्स तो जाएंगे, वी ह्यूमन बीइंग नोज कि जब हम भी आईज क्लोज करके बैठेंगे अवर माइंड विल स्टार्ट वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, बट इन मेडिटेशन वी ब्रिंग्स इट बैक एंड वी जस्ट फोकस ऑन अवर ब्रेथ. When it will go, then again bring it back and again focus on your breath. So that is how you are training your mind to be quiet, to be peaceful. The more your mind will be get trained to be peaceful, तो इट विल हेल्प यू इन ऑल द सिचुएशंस, क्योंकि अभी आपके माइंड को धीरे धीरे आदत पड़ रही है टू बी पीसफुल, और आप इतना ओवर थिंकिंग मत करो. सो दैट इज हाउ यू कैन ब्रेक द पैटर्न. राइट. Right, absolutely. So before we close, I think either overthinking is also because we are too judgmental, is it? Yeah, definitely, definitely. I said no, should और must जहां आ जाते हैं, that clearly shows कि we are judgmental about the things. ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए. So what we are doing, we are judging other person or either other person or ourselves. The more we are judging ourselves or other person, that overthinking will start happening. है ना, क्योंकि वो सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो मुझे इसको कंट्रोल करना है. सो दैट इज हाउ वी बिकम कंट्रोल फ्री. वी स्टार्ट जजिंग पीपल, दैट पर्सन इज रॉन्ग, ही इज डूइंग दिस थिंग, दिस इज नॉट अ राइट काइंड ऑफ अ थिंग. राइट. सो थिंग्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू मी, जो मैं चाहता हूँ वैसे नहीं चल रही है ना, आई एम जजिंग दैट पर्सन. तो वो फिर इट गोज अल्टीमेटली इनटू द ओवर थिंकिंग स्पाइरल में चली जाती है. So as Paruldi mentions, we can start thinking of good thing life has given us, then we can stop thinking less of not so good things. So I think gratitude is Practice, that's true, that's true. Gratitude helps a lot in our bringing back our mental health and breaking the patterns of overthinking. That's true. So Amita ma'am has given us 3 important points, a quick reminder of what she has shared. 3 important points, 3 important ways by which we can stop overthinking. First is, keeping a notice of how, कोई भी चीज होता है उसके बाद हमारी thinking कैसे spiral में चली जाती है. So training our mind of the cognitive behavior of our thought process की, is it important, will it help? Maybe just writing it down, writing all the thoughts that is coming in your mind. अगर आप लिख लो तो वो एक बार सिस्टम से निकल जाता है, फिर वो आपके बार बार आपको परेशान नहीं करेगा. कई बार होता है ना, या तो हम रो लेते हैं या किसी को बोल लेते हैं तो हम खाली हो जाते हैं. तो आई थिंक उसको अपने सिस्टम से निकालना जरूरी होता है. तो अगर कोई चीज है जो आपको परेशान कर रहा है तो उसको आप सिस्टम से निकालिए एंड कीप अ शार्प नोटिस ऑफ इट कि क्या ये जरूरी है, नहीं है तो फिर उसको हटाओ. Meditation and breathing exercise, Amita ma'am said ki it's a beautiful way of, controlling your thoughts. Meditation आपको it's like a giving a mini vacation to your mind. Meditation के बारे में ऐसा बोला जाता है कि आप अपने माइंड को एक मिनी वेकेशन दे रहे हो. आप इस एक सिचुएशन से अपने आप को निकाल ले रहे हो और फिर आप बेटर फील कर रहे हो और आप फिर आ रहे हो वापस. Meditation will definitely help you. Breathing exercises definitely helps. Wim Hof आपने कहा, right? Wim, please Google Wim Hof and then you find out कि आपको अगर वो जो सूट करे. YouTube आजकल अच्छे से भी यूज किया जा सकता है, other than for entertainment. We can use it for breathing exercises. किसी के साथ बैठ के breathing exercises करना है तो you will find someone on YouTube. And third thing she said ki exercise has a very big impact on us. As Jayaji mentioned ki walking will definitely help us, improve our dopamine circulation and happy hormones create करेगा, जिसके वजह से हमारे thought process, हमारे thoughts positive होंगे. And as Paruldi mentioned ki gratitude practice can help us look at the positive aspect of life. That's true. So I tried my best to sum up, but Amita ma'am, I haven't summed sum up very beautifully, very beautifully. You covered all the points, and thank you, Divya. It was a great session, great talking with you. And people all the people people still have questions. So everyone is first thanking you for a great session. Palka has a question. If negative thoughts coming, it means, okay, wait a second. If negative thoughts are coming, it means we are doing overthinking. Because
हाँ, नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स का हमारा एक लूप बन जाता है ना, आफ्टर दैट एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आता ही रहता है, दैट इज व्हाई इट गोज इनटू ओवर थिंकिंग जनरली, इट्स राइट। लाइक वन लीड्स टू अनदर। आप एक चीज बुरा सोचते हो, वो कुछ और फिर कुछ और। तो उसको राइट उसी राइट। कहते हैं ना कि निप इन द बड। जैसे ही पहला आए, आपको वहीं पे उसको रोकना है कि मैं ऐसा नहीं सोचूंगी, लेट मी डू गेट बिजी विद समथिंग एल्स। हेमिंदर जी ने कहा ऑसम सेशन अमिता जी, ग्रेट सेशन विथ लॉट्स ऑफ लर्निंग, थैंक्स फॉर बीइंग देयर। मीनू मैम ने कहा गुड सेशन अमिता। Thank you everyone. Thanks a रूपाली lot. दी ने Thanks कहा a lot वेरी for गुड your सेशन। participation. Everyone's participation was really great. थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों ने बहुत अच्छे से चैट बॉक्स को यू केप्ट रनिंग एंड एवरीवन शेयर्ड सो मेनी गुड थिंग्स। आप लोग प्लीज यूट्यूब के ये वीडियो यूट्यूब में अपलोड हो जाएगा कल तक। आप लोग प्लीज इसको बहुत फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और लाइक सब्सक्राइब करो, ताकि हम एक ऑथेंटिक चैनल कहलाएं और हमें इजी होगा फिर। और बस आई थिंक दैट्स इट। Chalo, thank you. Thank you very much, Divya. It was a थैंक यू good सो मच connecting. अमिता मैम।